So in the last class, we discussed about operant conditioning and how behavior modification works on the principle of operant conditioning. We also discussed various techniques that are involved in BM and how can you apply each of them with various kind of issues. Now we are starting with the cognitive approaches that are used to study learning. So अब तक हम लोग सारे behavioral approaches पढ़ रहे थे. Now we have a cognitive approach. So latent learning, cognitive approaches में हमारी first theory है latent learning की. So it is a form of learning that is not immediately expressed in an overt response. So immediately जो learning express ना हो वो होती है latent learning. The word latent late से समझो, यानी कि जब जरूरत है सिर्फ तब जाकर के ये overtly express होगी, उससे पहले नहीं होगी. When you say overt and covert, what do we mean by overt and covert? Please respond. External and internal responses. Right. And which among these is overt and which is covert? I can't PPT. Sorry? I couldn't see the Can you now see the PPT? PPT? Yes, ma'am. Okay. So basically, we say a response is covert in nature when we are saying कि you cannot see it. It is internal, and overt is something that you can see directly through the behavior. Just a second. I think somebody is joining. Yeah, so overt and covert. Overt responses are those that we can see. ठीक है? So I can see that somebody is stealing something, or somebody is writing, somebody is reading. I can see it. These are overt responses, and covert responses are those that we cannot see. हम covert responses को overt की help से समझने की कोशिश करते हैं usually. So my mental processes, what is going inside my mind is covert, and how I am expressing these mental processes through my behavior is overt. This latent learning theory was developed by Edward C. Tolman, an important name in the field of learning. Latent learning is not readily apparent to the researcher because it is not shown behaviorally until there is sufficient motivation. So Tolman basically said that learning हम लोग कर लेते हैं, but हम इस learning को behaviorally show नहीं करते तब तक जब तक हमारे पास sufficient motivation ना हो to show it through our behavior. हम लोग बहुत सारी चीजें learn कर लेते हैं but behaviorally नहीं show करते जब तक हमारे पास motivation ना हो उस चीज को actually करने का. So based on this, Tolman said that there are certain instances when learning can be completely native in nature. So cognitive learning के सिवा cognitive psychology की field में भी Tolman की theory is very important. He also said that latent learning can be done by observation also. सिर्फ observation की help से भी आप latent learning कर सकते हो. गरम है 15 मिनट. Tolman documented the study first time on rats in the year 1930. तो लेटेंट लर्निंग को समझाने के लिए टॉलमन ने रैट्स यानी कि चूहों पर एक स्टडी करी थी 1930 में. टू स्टडी दिस टोलमैन बेसिकली डिजाइन्ड अ स्टडी जिसमें उन्होंने रैट्स के 3 ग्रुप्स बनाए
और इन रैट्स को एक मेज में रख दिया. So 3 ग्रुप बने, ग्रुप 1, ग्रुप 2 and group 3. All of these groups had equal number of rats. These rats were then allowed to explore inside the maze. ये जो मेज थी इसके अंदर चूहे एक्सप्लोर कर सकते थे उस मेज के पूरे एरिया को. सो ऐसे समझो, एक ये ऐसे बॉक्स है, इसमें ऐसे करके एक मेज है, इसके अंदर चूहे घूम सकते हैं जैसे भी, ठीक है, रास्ता अपने लिए खोज सकते हैं वो लोग. नाउ दिस फर्स्ट ग्रुप, इसको इस मेज को पूरा कंप्लीट करने का कोई रिवॉर्ड नहीं मिला. जो सेकंड ग्रुप है इनको रिवॉर्ड मिला था, और जो थर्ड ग्रुप था इनको स्टार्टिंग के 10 डेज तक कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, एंड देन आफ्टर 10 डेज फिर इनको रिवॉर्ड दिया गया. ठीक है. सो फर्स्ट ग्रुप रिसीव्ड नो रिवॉर्ड, second group received reward, and the third group received reward but after 10 days. ठीक है. And all of these rats actually explored the whole way of the maze. The results that were found in this study done by Tolman was that the first group consistently made errors in running the maze and showed little to no improvement over the 18-day study. So this is a study of 18 days. ठीक है. Throughout these 18 days जो फर्स्ट वाला ग्रुप था जिनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला था, इस ग्रुप के चूहों ने क्या किया कि उन्होंने एक बार मतलब वो मेज में इधर उधर घूमे, उसके बाद फिर अलग घूमे, उसके बाद अलग घूमे, तो एरर्स कंसिस्टेंटली रहे इनके इन चूहों में. ठीक है. जो सेकंड ग्रुप था, this group showed constant improvement in the number of errors made. So first day अगर 10 errors हुए, second day 8 हुए होंगे. Sorry, just a second. Where did my PPT go? So I was saying that the first group showed no improvement in the number of errors that they made throughout the 18-day study. The second group consistently showed an improvement in the number of errors that they made during these 18 days. ठीक है. So अगर first day 10 errors हुए तो second day 8 हुए होंगे, third day मान लो 7 हुए होंगे, 4th डे 6 हुए होंगे, एंड आफ्टर मतलब 18 डेज के एंड तक वो पूरी मेज का रास्ता बहुत अच्छे से समझ चुके थे. जो थर्ड ग्रुप था, इन्होंने स्टार्टिंग के 10 डेज जब तक रिवॉर्ड नहीं दिया गया था, इन लोगों ने बहुत कम इम्प्रूवमेंट दिखाया इन द नंबर ऑफ एरर्स दे मेड. लेकिन जैसे ही आफ्टर 10 डेज इनको रिवॉर्ड मिलने लगा, इनका जो रिवॉर्ड में एक तो पहले बता दूं फूड मिला था. ठीक है, रैट्स को. सो आफ्टर दोस 10 डेज इनका एक ड्रामेटिकल इम्प्रूवमेंट देखा गया. ठीक है. सो सडनली वो पूरे मेज का रास्ता समझ गए जैसे ही उनको फूड प्रेजेंट किया. सो बेस्ड ऑन दिस ओके, ऑल्सो हियर इट इज रिटन कि थर्ड ग्रुप ने इम्प्रूवमेंट तो दिखाया, ऑल्सो दिस इम्प्रूवमेंट वॉज मोर प्रोनाउंस्ड देन द सेकेंड कॉन्स्टेंट रिवॉर्ड ग्रुप. यानी कि जो सेकेंड ग्रुप था जिसको कॉन्स्टेंटली स्टार्टिंग से रिवॉर्ड मिल रहा था, उससे भी बेहतर इम्प्रूवमेंट था थर्ड ग्रुप वालों का, जिनको स्टार्टिंग के 10 डेज तो कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, एंड आफ्टर दैट दे गॉट द रिवॉर्ड. सो टॉलमन ने इस थ्योरी के बेसिस पे, ये इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये थ्योराइज किया कि जो थर्ड ग्रुप के रैट्स थे उन लोगों ने एक्चुअली वो मेज का एक कॉग्निटिव मैप, एक मैप जैसा अपने दिमाग में बना लिया था. दे हैड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट मेज, लेकिन क्योंकि कोई रिवॉर्ड नहीं था, कोई इंसेंटिव नहीं था, कोई मोटिवेशन नहीं था, इसीलिए वो इधर उधर मेज में खाली घूम रहे थे. ठीक है. बिकॉज दे हैड नो इंसेंटिव. जैसे ही उनको रिवॉर्ड या इंसेंटिव दिया गया,
वो लर्निंग जो लेटेंट थी यानी कि उनके माइंड में छुपी हुई थी वो यूजफुल होने लगी, ठीक है। और रैट्स ने मेज में एफिशिएंटली घूमना शुरू कर दिया। नाउ दे आर सेइंग कि मतलब टॉलमैन ने ये बोला कि लेटेंट लर्निंग बेसिकली यही लर्निंग है कि आप अपने माइंड में तो चीजों को समझ लेते हो, आप लर्न कर चुके होते हो, लेकिन बिहेवियरली आप सिर्फ और सिर्फ तब शो करते हो जब यू हैव अ मोटिवेशन टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क। सो जैसे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती है, सिमिलरली लेटेंट लर्निंग भी हमारी डेली लाइफ में यू कैन फाइंड इट वेरी एविडेंटली। अ डेली लाइफ एग्जाम्पल ऑफ दिस कैन बी कि मान लो आप एक रूट से डेली घर जाते हो, ठीक है, फ्रॉम कोचिंग टू योर कॉलेज और फ्रॉम योर कॉलेज टू योर होम, यू डेली यूज द सेम रूट। रास्ते में आपने बहुत सारे कैफेज, बहुत सारे शॉप्स देखे होते हैं, मतलब आपने कॉन्शियसली ट्राई भी नहीं किया होता है, बट आपके दिमाग में फीड हो गया होता है कि कौन सा शॉप, कौन सी कैफे कहाँ है, क्या रास्ता है, ठीक है। और आपकी ये इंफॉर्मेशन सालों तक अनयूज्ड रहती है। लेकिन अगर आपको सडनली बोला जाए कि आज मुझे इस फलाना स्ट्रीट के इस पर्टिकुलर कैफे में जाना है, तो आप बहुत आसानी से उस प्लेस को ट्रैक कर लोगे। व्हाई? बिकॉज फॉर इयर्स यू हैव एक्वायर्ड दैट इंफॉर्मेशन बट नॉट यूज्ड इट बिकॉज यू डिडंट नीड टू यूज इट। वो नीड नहीं थी, वो मोटिवेशन नहीं थी उस इंफॉर्मेशन को यूज करने की, तो आपने कभी करी नहीं। इट इज सिंपल एज दैट। आफ्टर लेटेंट लर्निंग, अनदर कॉग्निटिव अप्रोच टू लर्निंग इज कॉग्निटिव मैपिंग, ठीक है। कॉग्निटिव मैप होता क्या है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे ऑफ अ पर्सन्स मेंटल मॉडल, ठीक है। हमारे माइंड में किसी एक प्रोसेस या किसी कॉन्सेप्ट का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ये जो विजुअल, जैसे कि हमारे माइंड में चीजों की एक विजुअल इमेज बनी होती है ना, वैसे ही वो बोल रहे हैं कि हमारे माइंड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की भी एक इमेज बनी होती है। लेकिन उन्होंने ये बोला, मतलब जिन्होंने कॉग्निटिव मैपिंग दी, उन्होंने ये बोला कि ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है इसके कोई रूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि देयर आर नो रूल्स कि इसी टाइप का कॉग्निटिव मैप होगा, इसी टाइप का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा आपके माइंड में। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन on how the concepts and relationships between them are visually represented. हर किसी का visual representation अलग हो सकता है, बहुत सारे लोगों का सेम भी हो सकता है। So there are no rules कि आप कैसे concepts को और उससे related चीजों को अपने mind में visually represent करोगे। ये जो cognitive mapping की थ्योरी है, ये टॉलमैन की ही जो latent learning थ्योरी थी जो हमने अभी अभी पढ़ी उसमें से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। In psychology, it has a strong spatial connotation. Cognitive maps usually refer to the representation of space. In the psychology में काफी importance है cognitive mapping का. Why? Because ये जो cognitive maps होते हैं, ये हमारे mind में space का representation होता है कि हम अपने mind में कैसे space को represent करते हैं. So for example, अगर मैं आपसे बोलूं कि आंखें बंद करके मुझे अपने घर से UIBS का रास्ता बताओ, so आप बहुत आराम से एक मैप बना सकते हो अपने माइंड में, रूट बना सकते हो अपने माइंड में फ्रॉम योर होम टू UIBS। कॉलिन ईडन ने, ही वॉज एन ऑपरेशंस रिसर्चर, उन्होंने इस टर्म को एक काफी ब्रॉड सेंस में यूज किया था एंड ही रिफर टू अ मेंटल मॉडल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट और प्रोसेस। तो ईडन ने काफी ब्रॉडर सेंस में कॉग्निटिव मैपिंग को यूज किया। उन्होंने कहा जरूरी कोई चीज स्पेशली होनी चाहिए नेचर में, कोई भी कॉन्सेप्ट या प्रोसेस को आप अपने माइंड में विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, द एग्जांपल दैट आई जस्ट गिव यू, दैट द रूट फ्रॉम योर होम टू UIBS, दैट इज ऑब्वियसली स्पेशल इन नेचर। रूट्स आर स्पेशल इन नेचर। एक स्पेस में डेप्थ, हाइट, वेट होता है, सॉरी डेप्थ, हाइट, विथ होती है उसमें, ठीक है। सो ऑब्वियसली वो स्पेशियल है नेचर में। लेकिन कॉलिन ईडन ने ये बोला कि जरूरी नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट को स्पेशल ही होना चाहिए नेचर में, आप किसी भी टाइप के कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि आपको मुझे टाइप्स बताने हैं लर्निंग की थ्योरीज के, तो आप एक ऐसा मॉडल बना सकते हो ना अपने माइंड में, थ्योरीज।
टाइप्स ऑफ थ्योरीज। अब आपने यहाँ पे लिख दिया क्या कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, फिर आपने यहाँ पे लिखा ऑपरेंट कंडीशनिंग, सॉरी ओसी, एंड फिर आपने यहाँ पर लिख दिया कॉग्निटिव थ्योरीज, और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग आपने बना दिए। सो यू कैन मेक अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग, वेदर दैट कॉन्सेप्ट एक्चुअली इज स्पेशल इन नेचर और नॉट। यू कैन मेक अ मैप ऑफ एनीथिंग इन योर माइंड। कॉलिन ईडन ने ये भी बोला कि ये जो मैप्स होते हैं ये काफी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और इनकी कोई कंसिस्टेंट हायरार्की नहीं होती, ठीक है, काफी फ्लेक्सिबल होते हैं और दे कैन अकोमोडेट अ वाइड सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स और सिचुएशंस दैट नीड टू बी रिप्रेजेंटेड। यानी कि आप एक चीज से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को अकोमोडेट कर सकते हो अपने मेंटल मॉडल में, ठीक है। इसका एक इमेज था, आई डोंट नो कहाँ गया, मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। I'll show you a picture of how a cognitive map looks like. Here you will see a lot of images on cognitive, मतलब of different kinds of cognitive map, but you can see, देखो बहुत सारी हैं images, है ना, ये है, ये वाली है, फिर एक ये वाली है, ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अलग है, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग है, बट यू कैन सी कोई भी एक सिंपल टाइप का रूल नहीं फॉलो कर रही है, सारी अपने में अलग है। एवरी कॉग्निटिव मैप इज different in nature, ठीक है। So the used earlier was, I think, let me just find it out. Yes, I use this कि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जाए कि एजुकेशन कैसे बेटर हो सकती है, ठीक है, सो यू कैन मेक अ कॉग्निटिव मैप इनसाइड योर माइंड कि हमारी मतलब अगर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस है, हमारा इंटरेस्ट है, फैमिली का कैसा एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेटर्स कैसे हैं, इन सब के बेसिस पे आपकी एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी या बुरी हो सकती है। नाउ ऑल ऑफ दीज environment, educator, technology, family, interest, option, all of these have their other subsections also, जैसे कि फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, फैमिली इंकरेज करती है या नहीं, फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसा है, वो सपोर्ट कितना करते हैं, पेरेंट्स की जॉब्स कैसी हैं, पेरेंट्स की फाइनेंशियल, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। सो दिस इज अ कॉग्निटिव मैप। इज इट क्लियर? Is cognitive mapping clear? Is it a question? एक second, let me just check. Okay, great. Now the next topic that we have is of observational learning. Now what is observational learning? Observational learning occurs from watching, retaining and replicating a behavior observed from a model. So किसी और को observe करके, एक आपका ideal है या model है, किसी और को ऑब्जर्व करके जब आप वही चीज अपने में भी इनकॉर्पोरेट करते हो, दिस इज कॉल्ड, या आप उस चीज को लर्न कर लेते हो, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को पहले इमिटेशन बोला जाता था, अब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोला जाता है। द इंडिविजुअल्स परफॉर्मिंग द इमिटेटेड बिहेवियर आर कॉल्ड मॉडल्स, यानी कि ठीक है, जिसको देख करके हम उनका बिहेवियर इमिटेट कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं मॉडल। सो अगर मैं अपनी मम्मा का बिहेवियर इमिटेट कर रही हूं तो मेरी मदर इज द मॉडल। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हम सभी की लाइफ में, चाइल्डहुड में इट हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। व्हाई? बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन अथॉरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जब हम बड़े हो जाते हैं तो वी फाइंड आवरसेल्व्स स्टेबल इनफ टू टेक आवर ओन डिसीजंस। हमें पता है कि हमें क्या चीज अपने अंदर, हमें क्या लर्न करना है, क्या नहीं। लेकिन जब हम बहुत छोटे होते हैं तो तब दूसरों को देख करके चीजों को सीखना
हमारे अथॉरिटी फिगर्स जो हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं, उनका क्या से है अबाउट थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए उस टाइम पे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का जो फर्स्ट रिकॉर्डेड इंस्टेंस है, वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्डेड इंस्टेंस was a research that was done by Albert Bandura in the year 1961. Albert Bandura का जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का जो थ्योरी है उसको बोलते हैं बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। आई मीन इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही मेड द थ्योरी। This experiment demonstrated that children can learn merely by observing the behavior of a social model, and that observing reinforcement of the model's behavior could affect whether or not a behavior was emulated. तो ये एक्सपेरिमेंट ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि कई बार हम दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके ही चीजें लर्न कर लेते हैं। किसी सोशल मॉडल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके हम लर्न कर लेते हैं, और साथ में ये ऑब्जर्व करना कि उस मॉडल को किसी एक बिहेवियर के लिए रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, यानी कि रिवॉर्ड मिल रहा है, अच्छी चीज मिल रही है, तो हम और ज्यादा उस चीज को लर्न करते हैं। ठीक है, और ये रीइंफोर्समेंट कैसा मिल रहा है ये अफेक्ट करता है, ये डिसाइड करता है कि हम कोई बिहेवियर करेंगे या नहीं करेंगे। सो ऑल राइट, अभी तक आपने देखा होगा कि लेटेंट लर्निंग हो या क्लासिकल कंडीशनिंग हो, ऑपरेंट कंडीशनिंग हो, ये सारी की सारी एनिमल्स पे हो रही थी। लेकिन बैंडुरा को लगता था कि हम ह्यूमंस कॉग्निटिव बीइंग्स होते हैं। कॉग्निटिव वर्ड का मतलब है वी कैन थिंक, कॉग्निटिव बीइंग्स हैं यानी कि वी कैन थिंक, वी कैन प्रोसेस थिंग्स, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम अपने माइंड को एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हैं। तो बैंडुरा का कहना था कि ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स से अलग होते हैं, इसलिए जो आपने स्टडी एनिमल्स पे करी है वो आप ह्यूमंस पे अप्लाई करने का कोई पॉइंट नहीं है। हम एनिमल्स से बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, वी आर कॉग्निटिव बीइंग्स। सो वी एज ह्यूमंस कैन थिंक अबाउट द लिंक्स बिटवीन our behavior consequences, so we can think कि हम जो कर रहे हैं उसका consequence क्या होगा। animals cannot, more likely and we are more likely to be influenced by what we believe will happen than by actual experience। और हमारे लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या है, हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या बिलीव करते हैं एक चीज, एक एक्शन से क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। हमारे बिलीव्स बहुत मैटर करते हैं, और इसीलिए इन्हीं थ्योरीज, इसी थिंकिंग की वजह से बैंडुरा ने अपनी स्टडी एनिमल्स की जगह ह्यूमंस पे करी थी। सो दिस वाज द बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ठीक है, तीनों ग्रुप्स में इक्वल नंबर ऑफ बच्चे रखे गए थे और इनको एक मूवी दिखाई गई थी। द मूवी दैट वाज शोन टू दीज किड्स वाज द सेम। मूवी में क्या था कि एक बड़ा, मतलब इन बच्चों की जो एज है, ये सारे बच्चों की जो एज है उनसे थोड़ा सा बड़ा, मतलब इनसे 4-5 साल बड़ा बच्चा एक मतलब अडोलेसेंट था, वो एक रूम में जाता है। ये मूवी है, ठीक है, कि ये अडोलेसेंट एक रूम में जाता है जहां पे बहुत सारे टॉयज हैं, और इन टॉयज में से एक है बोबोडॉल। बोबोडॉल वो वाली होती है, आपने मूवीज में देखा होगा या हो सकता है एक्चुअल में भी देखा हो, कि वो डॉल नहीं होती है, उसको मारो तो वो गिरती है और फिर वापस ऊपर आ जाती है। वो एयर वाली एक डॉल होती है बड़ी सी, ठीक है, उसको पंच करो वो वापस से उठ जाती है। दिस इज अ बोबोडॉल, ठीक है। सो मूवी में ये था कि वो बच्चा उस रूम में जाता है और वो इन टॉयज को मारना शुरू कर देता है, बहुत वायलेंटली इनके साथ खेलना शुरू कर देता है, इन टॉयज को मारता है, पीटता है, और स्पेशली बोबोडॉल को बहुत ज्यादा मारता है, ठीक है। तीनों ग्रुप्स में फर्क क्या था कि ये मूवी दिखाने के बाद फर्स्ट वाले ग्रुप को ये शो किया गया कि इस बड़े बच्चे को ये वायलेंट बिहेवियर शो करने के लिए रीइंफोर्समेंट मिला, उसे टॉफी दी गई, उसे कोल्ड ड्रिंक दी गई, उससे बोला गया दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग,
ठीक है, यू आर द चैंपियन, मतलब बेसिकली इस बच्चे को रीइंफोर्स किया गया ये वॉयलेंस शो करने के लिए। दूसरे ग्रुप वालों को, सेकेंड ग्रुप वालों को ये शो किया गया कि इस बच्चे को इस वॉयलेंट बिहेवियर के लिए डांटा गया है कि दिस इज अ बैड थिंग टू डू। सो दिस ग्रुप वाज शोन दैट द गाय वाज पनिश्ड फॉर डूइंग सो। यहां पर इनको शो किया गया कि दिस एल्डर किड वाज रिवॉर्डेड फॉर दिस वॉयलेंट बिहेवियर। थर्ड ग्रुप को ना मतलब कुछ भी नहीं शो किया गया, इसके बाद उनके लिए मूवी यहीं पर खत्म हो गई, ठीक है। इसके बाद इट वाज फाउंड, रिजल्ट्स क्या थे, हाँ रिजल्ट्स इसके ये थे कि जब फर्स्ट ग्रुप वाले बच्चों को एक्चुअली ऐसे रूम में रखा गया जहां बहुत सारे टॉयज हैं, इन बच्चों ने भी इस ग्रुप के इन टॉयज को मारा। दे गॉट वायलेंट विद दीज टॉयज। सेकेंड ग्रुप वालों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, दे वर नॉट वायलेंट एट ऑल, दे वर द लीस्ट वायलेंट, ठीक है, एंड दीज वर द मोस्ट वायलेंट वंस। थर्ड वालों में से कुछ बच्चे वायलेंट थे, कुछ बच्चे वायलेंट नहीं थे, मतलब some kids इस group were violent to these toys and some kids were not. But the significance was कि the first group was the most violent group and the second group was the least violent group. So इसके बेसिस पे बैंडोरा ने बोला कि हम जो देखते हैं हम उस चीज को अक्वायर कर लेते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वो बिहेवियर रीइंफोर्स किया जा रहा है या पनिश किया जा रहा है। इसके बहुत ठीक है, पहले ये पढ़ते हैं। इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ऑब्जर्वर्स acquire knowledge by observing the model's behavior, but performance is influenced by model's behavior being rewarded or punished. So ये भी डेली लाइफ में हो सकता है, जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। A newer employee avoids being late to work after seeing a co-worker being fired for getting late. So एक नया एम्प्लॉय आया है कंपनी में, उसने देखा कि उसके कोवर्कर को फायर किया गया है बिकॉज वो लेट है, तो वो कभी लेट नहीं आता। नेक्स्ट, एक बच्चा चीट कर रहा था, उसको उस चीज के लिए पनिशमेंट मिली, तो ये स्टूडेंट ने चीट नहीं किया। ऑल्सो एक बहुत कॉमन चीज देखी जाती है पीयर प्रेशर में स्मोक करना, ठीक है। दोस्त जा रहे हैं, लड़ रहे हैं कि आजा चल चलते हैं, उस लड़के को मार के आते हैं, मारा है, ठीक है। सो पीयर प्रेशर में ये जो होता है ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, ठीक है ना। जिस स्कूल में एक लड़के ने एक ग्रुप को मारा या दूसरे लड़के को मारा फॉर वॉट एवर रीजन, तो वो हीरो बन गया। सो बेसिकली दैट गाय वाज रिवॉर्डेड फॉर फाइटिंग विद अदर बॉयज इन द स्कूल, ठीक है, हम भी लड़ेंगे। So this happens very oftenly in our school, ठीक है। So a child may learn to smoke, fight, smack, swear, गाली देना बहुत हम सीखते हैं इन सब चीजों से, ठीक है। And similar other inappropriate behaviors by observing their role models or friends. हम friends को, role models को देख करके ये सारी चीजें सीख सकते हैं। Why? Because these things are मतलब बहुत अच्छी मानी जाती हैं कि अच्छा गाली नहीं देते तो तुम तो भैया बेवकूफ हो। This is a very common thing. Then we have vicarious learning. Vicarious learning is a concept that is very much like observation learning only, ठीक है। बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, यहां पर भी हम देखकर ही सीखते हैं चीजों को, लेकिन सॉरी व्हाट हैपेंड, सो विकेरियस लर्निंग में भी हम देखकर ही सीखते हैं। आई ट्राई टू फाइंड इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन विकेरियस एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। कहीं कहीं शो होता है कि हाँ डिफरेंस है और कहीं कहीं शो होता है कि कोई डिफरेंस नहीं है एज सच। तो इसीलिए मतलब बट आई केम टू अ कंक्लूजन, अगर आप कभी भी पढ़ोगे हो सकता है आपको कुछ बुक्स में मिल जाए कि विकेरियस लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज द सेम थिंग, कहीं कहीं हो सकता है कि आपको मिल जाए कि नहीं, बोथ आर डिफरेंट। What I found out from a lot of research was
कि विकेरियस इज वेरी मच लाइक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. द डिफरेंस इज कि यहाँ पर यूजुअली ये चीजें कार्टून्स मतलब रियल लाइफ की चीजों को मॉडल बना करके नहीं, बल्कि कार्टून्स, नॉवेल्स, स्टोरी बुक्स, मॉरल साइंस की जो बुक्स होती हैं उन सबको देख करके आप सीखते हो. बोथ आर ऑब्जर्वेशनल, लेकिन ऑब्जर्वेशनल में इट इज मोर अबाउट कि आप रियल लाइफ में लोगों को क्या करते देख रहे हो, और विकैरियस लर्निंग में इट इज मोर अबाउट कि आप फिक्शन में क्या देख रहे हो. ठीक है. सो मूवीज देख करके, ऑब्जर्व करके कुछ चीज लर्न करना, मम्मी ने फेरी टेल में कोई स्टोरी सुनाई थी उससे मॉरल सीख करके कुछ लर्न कर लेना. ठीक है. ऑल ऑफ दीज इज vicarious learning. So for example, if you saw Kabir Singh, if a guy saw Kabir Singh and he learned from it कि ठीक है, violence is okay in a relationship and a man can hit a woman can hit a man in a relationship. When it comes to love, hitting is okay and the person is doing the same thing in his or her relationship, that is vicarious learning. ठीक है. So the word vicarious, इट इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट एज इन कि आपने जो चीज देखी है, जो चीज करी है, आपने खुद जो चीज सुनी है या करी है उसमें आपने खुद को सब्स्टिट्यूट कर लिया. ठीक है. The moral that a kid learns by watching cartoons, kid shows and hearing to stories is an example of vicarious learning. So yes, again I researched a lot about it and a significant difference that I could find in all the मतलब क्योंकि मुझे कोई प्रॉपर रीजन नहीं मिल रहा था दोनों के डिफरेंसेस का, या दोनों अलग होते हैं या सिंपल होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े एंड आई फाउंड आउट कि विकेरियस लर्निंग के ज्यादातर एग्जाम्पल्स मूवीज, कार्टून्स, बुक्स, मॉरल साइंस इन सब के दिए हुए थे एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में काफी सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए हुए थे. दिस इज वाई आई एम सेइंग कि ये डिफरेंस हो सकता है दोनों में, बट obviously this is just my interpretation of the whole thing. You also try to find out, मतलब this is a homework for all of you कि जाकर के देखो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और विकेरियस लर्निंग में कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता है. अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलता है तो शेयर इट विद द क्लास, शेयर इट इन द ग्रुप so that everybody gets to know if these two are different or similar. Then we have verbal learning. Verbal learning is limited to human beings only, obviously because verbal है nature में और humans के सिवा कोई और नहीं verbally बात कर पाता है, तो it is a learning that is limited to human beings only. So we acquire a lot of knowledge from the objects, events and their features in the form of words only. तो हमें बहुत सारी नॉलेज वर्ड्स के फॉर्म में मिलती है. ठीक है. इट हैज बीन अ लॉन्ग डिबेट कि क्या अगर लैंग्वेज नहीं होती तो हम लोग सोच भी पाते, जो हम इतना प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग करते हैं, अपने माइंड में इतना कुछ सोचते हैं, क्या वर्ड्स के बिना हम सिर्फ इमेजेस की फॉर्म में चीजें कर पाते? इट हैज बीन अ लॉन्ग डिबेट. ठीक है. सो वी एक्वायर अ लॉट ऑफ नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स. सो टू स्टडी दीज वर्बल लर्निंग को स्टडी करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने नॉनसेंस सिलेबल्स, फेमिलियर और अनफेमिलियर वर्ड्स का यूज किया था, साथ में सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स का भी यूज किया था. सो व्हाट आर नॉनसेंस सिलेबल्स? नॉनसेंस सिलेबल्स में एक लिस्ट होती है वर्ड की. ठीक है. 3 लेटर वर्ड्स होते हैं, 3 लेटर्स के वर्ड्स होते हैं, उसकी लिस्ट होती है. ये जो वर्ड्स होते हैं इनका कोई मतलब नहीं होता. सो इट कैन बी ZOY, GOV, AIC. ठीक है. So there is no sense of these words, but so that is why these are called nonsense syllables. Then there are familiar words and unfamiliar words. Familiar words वो होते हैं जिनके लिए we know that this is a word, we know the meaning of these words. And unfamiliar words are कि मतलब ये actually में words होते हैं but commonly आप use नहीं करते हो, so you are not familiar with these words. They do have a meaning but you are not aware of these meanings. Also sentences and paragraphs were also used to study verbal learning. Just a second.
So the first method that we have, so yeah, a lot of methods have been used to study verbal learning. The first method is paired associates learning. This method is useful in learning the foreign language equivalents of mother tongue. So अपनी mother tongue के foreign language equivalents को learn करने के लिए paired associates learning काफी use होती है. So for example, I am Avni Atri. इसका फ्रेंच में इसको कैसे बोलेंगे या किसी और फॉरेन लैंग्वेज में इसको कैसे बोलेंगे, इसके लिए काफी हेल्पफुल होता है ये. सो इसमें एक लिस्ट यूज होती है पेयर्ड एसोसिएट्स की. पेयर्ड एसोसिएट्स पहले बनाए जाते हैं. पेयर्ड एसोसिएट्स क्या है? एक स्टिमुलस होता है और एक रिस्पॉन्स होता है. द फर्स्ट वर्ड इज अ स्टिमुलस एंड द सेकेंड वर्ड इज अ रिस्पॉन्स. जो स्टिमुलस है दैट इज अ नॉनसेंस वर्ड और कैन बी अ वर्ड फ्रॉम अनदर फॉरेन लैंग्वेज एंड द रिस्पॉन्स वर्ड इज अ इंग्लिश वर्ड दैट वी नो द मीनिंग ऑफ, जिसके मीनिंग के लिए वी आर अवेयर. इसके बाद इनको याद करना होता है. ठीक है, you are supposed to learn this. The first members of the pair, that is the stimulus term, are nonsense syllables and it can be another language का word also. अगर nonsense syllable है तो it will be a 3-letter word और इसमें first letter consonant होगा, second vowel होगा, third consonant होगा. Always किसी भी example में देख लो, the middle is a vowel and the first and the last letter is always a consonant. ठीक है. जो second है यानी कि response words हैं वो English के nouns हैं. The person is supposed to learn all of these and recall it. ठीक है, recall कैसे? कि अगर मैंने gen बोला तो you have to say loot. अगर मैंने bem बोला तो you have to say time. अगर मैंने div बोला you have to say lamp. The person is supposed to learn and recall these. and अगर failure हो जाता है, अगर फेलियर हो जाता है तो आप रिस्पॉन्स वर्ड दिखा देते हो पर्सन को. सो अगर मैं आप पर टेस्ट कर रही हूँ और आप नहीं रिकॉल कर पाए तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अच्छा डिव का रिस्पॉन्स वर्ड इज लैम्प. आई विल शो इट टू यू. The trials keep on continuing till all the words are recalled without error or failure. आपकी आवाज कट रही है. अब आ रही है मेरी आवाज? Can you hear me now? Excuse me. आपकी आवाज कट रही है. हाँ, I heard you. आपको अब आ रही है मेरी आवाज? Yes, ma'am. So I was saying कि the subject is supposed to learn and recall all the words. अगर फेलियर हो जाता है तो आप रिस्पॉन्स वर्ड दिखा देते हो कि DI, जैसे अगर DIV पे अटक गया इंसान, नहीं बता पा रहा कि उसका रिस्पॉन्स वर्ड इज लैम्प, तो आई विल शो द पर्सन दैट द रिस्पॉन्स इज लैम्प. ठीक है, और ऐसा तब तक करते रहते हैं, ऐसे ही बार बार ट्रायल करते रहते हैं तब तक जब तक विदाउट फेलियर सारे के सारे वर्ड्स याद ना हो जाएं. इसका बाद में स्कोरिंग कैसे होती है कि जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स लगे that is equal to the measure of paired associates learning. So if it took you 15 trials to do it without any error, your score would be 15. This is how it is done. Now before I start with any questions, इतने टाइम में जो ब्रेक लिया अभी 5 मिनट्स का 10 मिनट्स का, उसमें कोई क्वेश्चन आया हो तो पूछ लो. All right, then I'll continue. So the next method that is used in verbal learning is called serial learning. This method is used to find out how a list of words is learned and what are the processes involved in it. So अभी तो हमने देखा कि कैसे आप लर्न कर सकते हो, लेकिन कैसे आप फॉरेन लैंग्वेज के इक्विवेलेंट को लर्न कर सकते हो, लेकिन एक लिस्ट ऑफ कैसे लर्न करता है और क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं उसको स्टडी करने के लिए सीरियल लर्निंग का मेथड यूज हुआ था. सो इसमें एक लिस्ट प्रिपेयर करी गई थी वर्बल आइटम्स की. दिस लिस्ट कंटेन्स नॉनसेंस सिलेबल्स. जैसे मैंने आपको बताया कि नॉनसेंस सिलेबल्स किस टाइप के होते हैं. दीज आर 3-letter वर्ड्स जिसमें एक कॉन्सोनेंट होता है, फिर एक वॉवल होता है, फिर एक कॉन्सोनेंट होता है. सो फॉर एग्जाम्पल GEN,
DAC, ठीक है, दीज आर नॉनसेंस सिलेबल्स। तो एक लिस्ट प्रिपेयर करी गई जिसमें नॉनसेंस सिलेबल्स डाले गए, कुछ मोस्ट फेमिलियर वर्ड्स डाले गए और कुछ लीस्ट फेमिलियर वर्ड्स डाले गए। मोस्ट फेमिलियर वर्ड्स वुड बी वर्ड्स लाइक कैट, बैट, orange, words like this, words that you very well know. And least familiar words में कुछ ऐसे words जो dictionary words तो हैं but you are not aware about those words. The participant is presented the entire list, पूरी list participant को दी जाती है and उनको बोला जाता है कि आप उसको learn करो, you have to learn it and then recall it बट इन द सेम सीरियल जो लिस्ट में दिया गया है। सो जो नंबर 1 पर है वो नंबर 1 पे आएगा, देन सेकंड वाला, देन थर्ड वाला। इट हैज टू बी रिकॉल्ड इन द एग्जैक्ट सीरियल ओनली। सो हाँ, फर्स्ट ट्रायल में क्या होता है, फर्स्ट वर्ड आप प्रेजेंट करोगे। सो पर्सन ने याद कर लिया, उसके बाद जो फर्स्ट वर्ड है लिस्ट का वो आप बोलोगे और फिर पार्टिसिपेंट को नेक्स्ट वर्ड बताना होगा या लिखना होगा, ठीक है। सो द फर्स्ट वर्ड वर्क्स एज अ स्टिमुलस फॉर द सेकेंड वर्ड एंड द सेकेंड वर्ड वुड बी द रिस्पॉन्स, ठीक है। देन दिस सेकेंड वर्ड विल बिकम द stimulus and the third word would be the response। ऐसे चलता जाता है, फर्स्ट स्टिमुलस है, सेकंड रिस्पॉन्स है, देन सेकंड वाला स्टिमुलस बन जाता है एंड थर्ड वर्ड इज सपोज टू बी द रिस्पॉन्स। If the person fails to do this, fails to give the right response within the given time limit, तो फिर एक्सपेरिमेंटर सेकेंड आइटम को भी प्रेजेंट करेगा। सो अगर फर्स्ट बोला था और सेकेंड वर्ड वो नहीं बता पाया तो आप सेकेंड वर्ड फिर से बताओगे कि आप थर्ड वर्ड बता दो। अगर वो भी नहीं बता पाया तो फिर आप थर्ड वर्ड बताओगे उसको, फिर नहीं बता पाएगा तो फोर्थ बता दोगे। सो the word that was supposed to be the response becomes the stimulus and the participant has to produce the next item as the response। फिर से अगर failure होता है then the third word would become stimulus and the fourth word is to be produced, ठीक है, ऐसे चलता रहता है। Learning trials continue until the participant correctly anticipates all the items in the given order। Learning trial तब तक चलता रहता है जब तक participant सारे के सारे वर्ड्स करेक्टली नहीं बता देता है। इसको सीरियल एंटिसिपेशन मेथड भी बोलते हैं। देन वी हैव फ्री रिकॉल, ये भी बिल्कुल उसी टाइप का है सीरियल लर्निंग की तरह, ठीक है। एक लिस्ट प्रेजेंट करी जाएगी जो उनको रीड करना है, स्पीक आउट करना है एंड देन दे हैव टू रिकॉल। लेकिन यहाँ पर एक लिस्ट डायरेक्टली नहीं दी जाती है, वर्ड्स शो किए जाते हैं, मतलब एक बड़ी सी स्क्रीन है, इस पर वर्ड शो किए जाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल अ वर्ड ब्लू इज शोन ऑन दिस स्क्रीन, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट से 4 सेकेंड्स। अब एक एक करके सारे के सारे वर्ड शो होते हैं बट every word would be on the screen for the same time limit. So at a fixed rate of exposure duration, each word is shown. Immediately after the presentation of the list, the participants are required to recall the word in any order they can. So the difference is यहाँ पे free recall है, जरूरी नहीं है सेम सीरीज में बताओ, आप कभी भी कोई वाला भी वर्ड बता सकते हो। आप 10th वर्ड बता सकते हो, फिर सेकंड बता सकते हो, फिर 5th वर्ड बता सकते हो, फिर 12th वर्ड बता सकते हो। So you are supposed to, you can recall it in any series that you want, ठीक है। वर्ड्स कैन, ये जो वर्ड्स दिखाए जाते हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि टोटली अनरिलेटेड हो। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंटर कि वो कौन सी लिस्ट चूज करना चाहता है। जरूरी होता है, एक प्री रिक्विजिट है कि लिस्ट में मोर देन 10 वर्ड्स होने चाहिए, मतलब मिनिमम इज 10 से कम वर्ड्स होंगे तो नहीं मानेंगे। अच्छा, वर्ड्स का ऑर्डर क्या है कि पहले ब्लू शो होना है फिर ऑरेंज शो होना है या पहले ऑरेंज होना है फिर ब्लू होना है, ये ट्रायल टू ट्रायल डिफर करता है। सो अगर फर्स्ट ट्रायल में यू हैव फेल्ड तो सेकंड ट्रायल में सेम ऑर्डर में वर्ड्स नहीं दिखाए जाएंगे, ऑर्डर चेंज कर दिया जाएगा बट वर्ड सेम ही रहेंगे।
The method is basically used to study how participants organize the words in their mind to remember it efficiently. So ऐसे होता है ना कि हम अपने माइंड में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि अच्छा सारे ए वाले वर्ड्स पहले याद कर लिए, फिर सारे बी वाले, फिर सारे सी वाले. बट दिस इज माई वे, ऐसे मैं याद करती हूँ. लेकिन मेन पर्पज यही था, मेथड का पर्पज यही था कि कैसे लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने माइंड में वर्ड्स को, जिससे कि वो बेहतर तरह से उसको याद कर सके. सो स्टडीज ने ये इंडिकेट किया है कि वो वर्ड्स जो सबसे बिगनिंग में और सबसे एंड में प्लेस किए गए हैं, यानी कि जो फर्स्ट सेकंड वर्ड्स हैं और जो बिल्कुल लास्ट के वर्ड्स हैं, दोज वर्ड्स आर इजियर टू रिकॉल फॉर पीपल एज कंपेयर टू दोज वर्ड्स जो मिडिल में रखे गए हैं. ऐसे वर्ड्स को रिकॉल करना ज्यादा मुश्किल होता है. सो बीच के वर्ड्स आप भूल जाते हो. ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में आप बहुत फोकस्ड होते हो, ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग के वर्ड्स याद रह जाते हैं. फिर बीच में जाके यू गेट कंफ्यूज्ड कि यार पहले क्या दिखाया था, उससे पहले क्या दिखाया था, तो आपका ब्रेन दौड़ने लगता है बहुत तेजी से. तो मिडिल वर्ड्स हमारे स्किप हो जाते हैं. और लास्ट के वर्ड्स के लिए क्योंकि अभी अभी एक्सपोजर होता है तो वो माइंड में एज इमेज रह जाते हैं. ठीक है, दिस इज व्हाई इट हैपेंस कि जो बिगनिंग और एंड में वर्ड शो होते हैं वो हमें याद रहते हैं और मिडिल वाले हम भूल जाते हैं. देन वी हैव डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग. Discrimination learning is defined in psychology as the ability to respond differently to different stimulus. अलग अलग टाइप के स्टिमुलस के लिए अलग तरह से रिस्पॉन्ड करना is known as discrimination learning. So for example, sound of a bell. लेकिन ये साउंड ऑफ द बेल कैन बी डिफरेंट ना. एक मंदिर की, एक टेम्पल वाली बेल हो सकती है, मंदिर का घंटा हो सकता है, और एक बेल हो सकती है डोर बेल वाली. बट we know the difference between these two sounds of bell and we respond differently to both of these bells. है ना, डोर बेल होती है तो हम उठ करके जाते हैं गेट को खोलने, और टेम्पल की होती है तो प्रॉब्ली हम हाथ जोड़ सकते हैं, a lot of things that we can do. ठीक है, so the ability to distinguish between two stimulus that seems similar but still are the same, that seems similar but are still a bit different from each other, इनको डिफ्रेंशिएट करके, इनको डिस्क्रिमिनेट करके अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करना इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग. This type of learning is used in studies regarding operant conditioning and classical conditioning. जो तनिष्का आपने नहीं पढ़ी होगी ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग इससे पहले, लेकिन वो जो स्टडीज हैं, इफ यू विल गो थ्रू द प्रेजेंटेशंस या पुरानी स्लाइड्स को इफ यू विल गो थ्रू दैट, यू विल फाइंड ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग इन दैट. You will be able to understand it. It's not very difficult. Go through it once and you will be able to understand the concept of these. Although I want to tell here कि operant conditioning और classical conditioning में discrimination learning का काफी ज्यादा यूज हुआ है. स्पेशली क्लासिकल में यूज हुआ था, पैवलोव ने करी थी क्लासिकल कंडीशनिंग. ठीक है, इन्होंने दिखाया था कि जो डॉग है, डॉग को बेसिकली एक साउंड दी जाती है बेल की, और उसके बाद उसको फूड दिया जाता है. सो फूड पे सलाइवेट जो करना होता है, आफ्टर सम टाइम द डॉग लर्न्स टू सलाइवेट ऑन लिसनिंग द बेल ओनली, क्योंकि दिस बेल बिकम्स अ स्टिमुलस फॉर द डॉग कि अच्छा बेल बजी है तो अब मुझे खाना मिलेगा. ठीक है, सो ये जो कंडीशनिंग का प्रोसेस है पूरा पैवलोव का, इसमें पैवलोव ने डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग को एक्सप्लेन किया था कि कैसे डॉग एक ही टाइप के, मतलब साउंड अगर बहुत ज्यादा डिफरेंट है तो डॉग उस बेल की साउंड पर सलाइवेट नहीं करेगा फूड के लिए, लेकिन अगर सिमिलर जिसके लिए पहले जिसके साथ पेयर किया गया था वही साउंड दी जाएगी तो वो फूड के लिए सलाइवेट करेगा. तो कैसे डॉग डिस्क्रिमिनेट करता है, कैसे नहीं करता है, किन टाइप के स्टिमुलस में वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, इसको काफी अच्छे से पैवलोव ने एक्सप्लेन किया था. ठीक है, इसके सिवा देयर वाज कार्ल लैशले. ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने वॉटसन के अंडर में स्टडी करी थी. ही फोकस्ड मेनली ऑन स्टडीइंग लर्निंग एंड डिस्क्रिमिनेशन. इन्होंने काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली स्टडी करी थी लर्निंग पर और डिस्क्रिमिनेशन पर, और इन्होंने इससे रिलेटेड अपनी एक बुक पब्लिश कराई थी जिसका नाम है ब्रेन मैकेनिज्म्स एंड इंटेलिजेंस इन द ईयर 1929. सो प्लीज नोट दिस डाउन. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MCQs. दिस कैन बी देयर इन योर एग्जाम्स
कि 1929 में ब्रेन मैकेनिज्म्स एंड इंटेलिजेंस किसने पब्लिश करी थी? कार्ल लैशले ने. ब्रेन मैकेनिज्म्स एंड इंटेलिजेंस in the year 1929 was published by Carl Lashley. And who was Carl Lashley? He was a psychologist who studied under John Watson. Again, जैसे कि मैंने बताया डॉग का पावलोव का एग्जाम्पल, आइवान पावलोव, ही इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फिगर्स जब हम डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग की बात करते हैं. सो ह्यूमंस में अगर आप देखो, हम लोग डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, स्पेशली व्हेन वी नीड टू डिटेक्ट डेंजर. ठीक है, या फिर हमें डिफरेंसेस के बारे में लर्न करना है, ऐसी चीजों में हम डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग को यूज करते हैं. एन एग्जाम्पल वुड बी कि अ बेबी, इवन अ बेबी, अ ह्यूमन बेबी नोज हाउ टू डिस्क्रिमिनेट. ठीक है, अ स्मॉल इन्फेंट ऑल्सो कैन react the baby reacts differently to the mother's voice and to a stranger's voice. So एक मम्मा है, एक मदर की वॉइस है और एक किसी और लेडी की वॉइस है. ठीक है, some other lady's voice. दोनों वॉइसेस पर बच्चा अलग तरह से रिएक्ट करता है. Discrimination learning can almost become an unconscious process for many people and it becomes integrated into our daily routines. So after some time हम बहुत आसानी से discrimination learning को use करते हैं and it becomes very unconscious for us. मतलब बिना सोचे समझे हम यूज कर रहे हैं, हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते हैं कि अच्छा हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं अभी, और इसको अपनी डेली रूटीन में इंटीग्रेट करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल कुड बी ग्रोसरी शॉपिंग. ठीक है ना, अगर आप बेसिकली सब्जी या फ्रूट्स वगैरह खरीदने जाते हो, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खरीदने, वेरी इजीली यू कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. And in that also कि अगर आप apples खरीद रहे हो, you can very easily discriminate which apple do you want and which apple do you don't want, whether you want a red apple or a yellow apple or a green apple. And if red apple, then what kind of, आपको टाइट वाला चाहिए या आपको थोड़ा सा लूज सा चाहिए, कैसा रेड है तो कितना रेड है, we can very easily discriminate between it and choose. ठीक है, similarly we can very easily determine how to decipher between types of bread or fruit. We are able to tell similar stimuli apart. Similar type के बहुत similar stimulus जो होते हैं उनको भी हम अलग अलग कर सकते हैं. So 2 apples, सब कुछ ही सेम है ना, हमारा कॉन्सेप्ट पूरा एप्पल्स के लिए सेम है, पर उसमें भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, ऑल्सो कि हम म्यूजिक जब सुनते हैं तब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं. वी कैन वेरी इजीली डिस्क्रिमिनेट कि अभी कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है. ठीक है, या फिर अगर इंस्ट्रूमेंट में ही मैं पियानो बोलूं तो पियानो अभी कौन से कॉर्ड पे बज रहा है, कौन से नोट्स पे है. सो वी कैन वेरी इजीली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दीज अकाउस्टिक स्टिमुलस. ठीक है, we can also find the differences in the different notes and the chords that are being played throughout the music. And with this